सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जाप सरी महला पंजवा घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई जानै कवन इहा जग मीत। जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै। ताकी निर्मल रीत। कोई जानै कवन इहा जग मीत। वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी महाराज जी की पावन पवित्र हज़ूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵੇਂ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। जगन बुरी शीतल हुई मन सतगुरु का दर्शन पाए जीओ। सतगुरु के पिता मुनि की कथा विचार व्याख्या सो सत्संग करके गुरु जी एक बार उच्चारण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जाप सरी महला पंजवा घर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी जय श्री राग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚੌਪਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਧਨ, ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਕਰਮ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ। ਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਆਦਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਦੌਲਤ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਹੀ ਇਹ ਧਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰਕੋ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਭਗੇ। ਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਰ ਘਟ ਲਓ ਸਭ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਭਇਓ ਆਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਐਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਛੂਤ ਦੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮਰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਲਈਏ। ਇੰਝ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮ ਚਿਰ ਪਾ ਕੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਸ਼ ਦੇਵ ਭੁਗਤਿਅਮ ਕ੍ਰਿਤਮ ਕਰਮ ਸੁਭਾਸ਼ਿਤਮ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਉਜਲਾ।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਅਸਲੀ ਸਹਾਇਕ ਮਿੱਤਰ? ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈਸਰੀ ਰਾਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਵੀ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 533 ਵਾਰ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦਵੈਤ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾ ਜਗ ਮੀਤ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੁਝੈ, ਸੋਈ ਬਿਦ ਬੁਝੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਿਲਕ ਇਸ ਯੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਉਜਲ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ, ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਉਜਲ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਰਹਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ, ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜੋ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਤਹ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ, ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਅਗਿਆਨਵਸ਼ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਹਾਇਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਹਿਬਨਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸਤਿਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਭਗਾਨ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਾਈ, ਜੈ ਮਹਾਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜੰਗਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਚਿਰ ਜਨ, ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਟ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕਰੁਣਾ ਕਿਨ ਮਾਹੀ ਉਧਾਰੀ, ਅਨੰਦ ਗੁਣ ਚਰਨ ਕਰਤਨ ਉਤਰੈ,
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੋ ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਸੰਤ ਮਲਾਪੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਭ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਐਸਾ ਹਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੰਸਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਕਰੀ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਦਾਈ ਕੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਝੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਖਾਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡੇਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪੂਰੇ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 2-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਖਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਜੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ,
तो तुम 2-2 घंटे बोली जाते हो। ठीक है, एक मर्यादा है, गुरु घर के सेवादारों निभानी पैंती है। संगत भावें आप हाजिरी ना करना भी बाबा जी 2 मिनट लेट हो गया तो भी क्लास ला देनी है। वो भावें पता ही ना हो भी बोलता की है की हो रहा। ये आम सुभाव है साडा समाज का कि चलो मर्यादा मुताबिक होया 15-20 मिनट का घंटा समय मेला कर लिया। मां बोलते ने जो कर तेन पता और इन्नी संगत बैठी हुई है, किन्ने सिंह बाणियां के विच शस्त्रधारी सूर में सीधी फौज वेद किन्नी कथा सुन रही है। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्होंने निश्चय सीधा। बाकी महापुरुषों ने गुरबाणी पाठ दर्पण के विच श्री अखंड पाठ साहिब की मर्यादा लिखी है और बुद्धि में ये लिखा है कि जोड़ा पाठी सिंह श्री अखंड पाठ साहिब दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया हाजिरी करे, मेरे वर्गे ढिले बच्चे जे मेरी गुडरदा मेरी थां जोड़ा कोई वेख रहा है आप कल ही पाठ कर रहे हैं या सोचते मस्त जे बोली गई नहीं जोड़ा कुछ सुनता है। भागवत कहते नहीं भाई ये भावना रखनी है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सचमुच ही 10 पातशाहियों का स्वरूप है। जे आप दोहरा पढ़ते हैं दोहरा आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सचन को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ। गुरु ग्रंथ की मानियो पागल पदा की दे जो अब को मिले हो चाहे खोज शब्द ले। ये आपको निशा भी होना चाहिए कि पागल पदा की दे ਹੁਣ जे सचमुच ही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी साडे कोल बैठे होण या श्री गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने बैठे होण ते आपां वाले के चरणों में बैठ के जपजी साहिब का पाठ करते हुए उची बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। ये महाराज भी कहेंगे सतगुरु जी सुन रहे हैं कि आप उची बोल के पाठ सुनाइए। जे सचमुच ही गुरु ग्रंथ साहिब साड़ी भावना है कि साहब 10 पातशाहियों की जोत में ते पाठी सिंह को हुक्म है कि उची बोल के पाठ करे। कई मेरे वर्गे सिर घुमाई जाएंगे अखा घुमाई जाएंगे मुँह तो एक भी अखर नहीं बोलेंगे भावें 5 बंदे सामने बैठे हो देखने वाला मुंडा देखो भी बाबा जी का लिया वो सही हमारी जानकारी बोलेंगे है नहीं सुरती के नाल गाना पढ़नी एक अवस्था है। उन्होंने कोई सिखाने वाले हार जाइए जिन्होंने माने काबिल है कि पर अपने नेत्र के जिस तरह मर्जी पढ़ सुन सकते हैं। जितने संस्कृत अखंड पाठ साहिब है या सहज पाठ है उत्थे तो अखर बोल के ही पाठ करने को जाता है जोड़ा सही तरीका है। उंज सुस्ती पै जाती है पाठ सड़न कई बार हौली कई बार एक रस पढ़न की आ गया गुरु से हाजिर नाजिर जान के बधाई के वाले महापुरुष कथा कराया करते हैं कि महाराज हाजिर नाजिर में वो सिंह कहन लगा जो कथा करके थे उदो ही गलबात हो रही थी। एक दिन कथा की समाप्ति हुई ये समाप्ति के सारी विचारों से महापुरुषों ने कर दिया कि तुम 2-2 घंटे बोलते रहते हो कि सुनने वाला कोई होता नहीं जल्दी को पा दिया करो। बाबा जी कहते भाई सिंह सुनते हैं
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਡਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਇਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਕੀਤਾ। तो मैं तो ये भी सुनिया है कि गुरु गोबिंद सिंह जी तो लैके हुण तक उन्होंने वेले तो जिन्नियां भी रूहां गुरु घर की भेटा चढ़िया वो निशान सिर से हेठा उड़ीक रही ने कि कदों जो झंडा है निशान सिर सब दुनिया देखने फिरेगा, कोई सीमित जगह पर नहीं, सब दुनिया का राज करेगा। खालसा आकी रहे न कोई, पार वाले सा मिलेंगे बचे सजदे हुए, वो दिन वो ठीक रही ने, क्योंकि झंडे में चढ़ाने वास्ते उन्होंने बलिदान दिता। ये परमात्मा बड़ा बेअंत है, जीवना के भावें कामना पूरी करे ना करे, तो जोड़ा मन लगे बंदा रह जाए वो बंदे को जरूर दिखाऊंगा है, कामना पूरी करता जिद लगता मन वासना अंत सही कर विचार। आप कथा बाबा विचार कर रहे थे कि संत माधोदास जी कथा के इन्ने प्रेमी सन कि उन्होंने इन्ना रस आया कथा करदे आप ही उन्होंने बिरती जुड़ गई। कथा की मस्ती च समय का चेता ही ना रहा। ये तो ब्रह्म ज्ञानियों की मैं कथा सुना रहा, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਖੰਡ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਢਿੱਲ ਮਾਰ ਸਾਡੀ ਗਾਫਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੋਵੇ उन्नी की संगत का रस होंगे, जिन्ना समय ऊपर तुरया जाए उन्ना रस संगत। जे 5 मिनट ऊपर चला गया या 10 मिनट फिर तो सारा ही घंटे का रस खत्म हो जाता है, क्योंकि मन काला पै जाता है। ये समय का ख्याल रखना किसी आम है। पर आज भी कथा है ये ब्रह्म ज्ञानियों की है, इन्हों की आप रीस नहीं कर सकते। उन्होंने टाइम का चेता भुल गया, कथा की समाप्ति टाइम से की हुई ना, जब समाप्ति जाता वेख्या बादशाह के डर करके संगत उठनी चली गई। महापुरखों का अखा बंद करके कथा करी गए। एक शाहूकार का लड़का बैठा गया जोड़ा मेन आगा डेली उत्ते कथा सुना भी गलती हो गई। जब महापुरखों ने अखा खोलिया तो की वेख्या कि सारे उठ के चले गए, पर लड़का कोई आई नहीं। महापुरख कह लगे कि मैनू तो समय का चेता नहीं रहा, गुरु का जिथे और उठ के चले गए तो तू भी चले जाना सीगा। वो बच्चा कह लगा महाराज जी मैं चलिया जाता, एक तो मेरे श्रोते को लाज लग गई, क्योंकि
जे विचों उठ के चले जाइए तो सुनाने वाला महसूस करता पता नहीं इनू मेरी गल चंगी नहीं लगी। दूजा मेरा निर्णय उठता, तीजा कथा का नाराज उठता, क्योंकि शब्द की समाप्ति तो पहला उठना शब्द का नाराज है। हुक्मनामा चल रहा है, अरदास चल रही है, अरदास सरवण करिए, हुक्मनामा चल रहा है, हुक्मनामा सरवण करिए, कीर्तन चल रहा है और शब्द का भोग पैट के उठी है। तो यूँ कथा का नाराज होना सही एक सोचता नहीं रहा कि एक भी सुनने वाला नहीं रहा। इस करके गुरु दियाँ खुशियाँ नहीं सी होनियाँ। चौथा कथा का रश छड़ के मैं जा नहीं सकिया, उठन का चेता ही भुल गया। ना जान करके भावें राजे के हुक्म की उलंघना हुई है, पर मैंने खुशी हुई है कि मैं गुरु का हुक्म बनया पूरी कथा सुनी है। महापुरुषों के अंदर शीश निकल के बच्चा तेरा गुरु रखा है, ये बच्चा जब घर में होया तो अधी रात को समा फोन करके पुलिस वाले ने फड़ लिया। इन्हें बच्चे को दसिया कि मैं फलाने शाहूकार का पुत्र हाँ। बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने शाहूकार को ला के पूछा भी तेरा ही पुत्र। पर शाहूकार भी अपने पुत्र वालों घर का काम ना करके थोड़ी सी वैसे काम करता सीगा। सारी दिहाड़ी अपनी दुकान पर बैठना, अपने भरावां के नालों ज़्यादा काम करना, पर शामां पईआं जां दुकान बंद हो जानी, दूजे ने तो ताश खेडण चले जाना, किसी ने होर चूहेबाजी वाले पासे, कोई होर पासे। पर ये मुंडा इन्हें कथा सुनत हो जाना। शाहूकार ने रोकना पड़ा सीगा भी तो संगत न जाया कर। वो ईर्खा करता सीगा कि मेरा ये हुक्म नहीं मानता, क्यों दुखी होता से कि उन्हें ईर्खा वास्ते कह दिता कहता मेरा कोई नहीं लगता। इतना आम दुखी हो गए लोग कह ही दिए भी मेरा कोई नहीं लगता। माता ने भी अपने वचन कर देते, पुत्र के स्त्री के भरा ये सब देख के कि पुलिस का फड़िया गया है, सारे मुकर गए। अगले सोचा भी आप थोड़ा मरना, इन्हें मारना तो है अरे यही गलती है, जे आप भी हामी भरी वो सानू भी फड़ के ले जाएंगे। तो डरते मारे मुकर ही गए। पुराना समय इस तरह का लंघिया है, मैं अखा ने वेखिया लोगों ने एफीडेविट सरकारी मोह रेट ला के अपने सैन करके सगे माँ प्यो भैन भरावां ठाणे के देते कि जोड़ा साडा मुंडा साडा कोई नहीं लगता, जिथे तुहानूं मिले फड़ के पानी मार दिओ, जो मर्जी कर दो, साडा कुछ नहीं है। कई बेदखल कर देते। इन्ना कष्ट भरिया समा सिंघां ते गुजर गया। पर गुरु साहिब ने हर मौके अपने पंथ की अगवाई की। औखी घड़ी न देखण दे, अपना बिरद संभाले, आदमी राखे अपने को सा सुरत पाले। प्रभ सिंह लाड दे गुरु मेरा कीर्तन, आनंद सदा सहाय आनंद सदा सहाय। तन हमारा गीत रहा, मन विलास भरे साहिब के, अचरज देव लड़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, भगपूरन पैर लगाई। जब घर के सारी मुकर गए भी साडा कुछ नहीं लगता, क्योंकि बादशाह जी अपने को सारे डरे हुए सन। पर सुनी चढ़ाने को पहले राजे ने पूछा कि तेरा कोई होर भी मेल मिलापी है जोड़ा तेरी पहचान कर सके। तो उन्हें संत माधोदास का नाम लिया, संत माधोदास। तब बादशाह ने माधोदास को तुरंत बुलाया।
जब संत माधोदास जी पहुंचे तो बादशाह ने पूछा कि लड़का तेरा की लगता है। तो संत जी कह लगे कि भावें तुसीं इनू मेरा चेला कहो, तो भावें पुत्र कहो, तो भावें सत्संगी कहो, ये मेरा सब ही लगता है। बादशाह ने कहा संत जी ये हमारा कभी करना पड़िया गया, अधी रात कोई सत्संगत नहीं हो रही सी, मेरे हुक्म मुताबिक अभी रात को बाद खड़े जान करके तेनों सूरी के चढ़न हुक्म लगा है, तो मैं सूरी के चढ़न का हुक्म दे दिता। और सारी तैयारी है। संत माधोदास जी कहते कि बादशाह समझकारी जोर नहीं, बेगुनाह है, अगर तो भी रात को बाद मैं गुनाह बनना तो सजा मैं दे, क्योंकि मेरी वजह करके देरी नाल गया सी। जे मैं कदरी समाप्ति समय से कर दिंदा तो यदि दुर्दशा ना होती। ये साध बंदा होया भी चोर ना बढ़ना। असल के आम तौर पर पुलिस वाले के हाथ चंगे बंदे लगते हैं, क्योंकि चंगे बंदे में यकीन होता है कि मैं तो कोई गुनाह किया नहीं, हमें चोरी नहीं जानी, इसलिए वो अड़े रहते हैं अपनी जगह के बैठे खलोते रहते। जोड़े माड़े बंदे होंगे दौड़ जाते हैं, वो हाथ नहीं आते, उन्होंने पता भी कटाई होगी। इस वास्ते तमगे लैन वास्ते भी लोग के गुनाह करते हैं, चंगिया में पकड़ के सजा दे के तमगा ले लेना कि अपना गुनाहगार पकड़े हैं। पुराना टाइम सीगा, तत्तियां हवावां दे विच तुसीं सच नहीं मनना। मखू के कोल एक बडाला पिंड है, बडाला एक तो साढ़े बरपाला के कोल है, बिल्कुल साढ़े पिंड के नाल ही एक मखू के कोल है। उतों के एक खाटू सिंह होए भाई गुरनाम सिंह जी बडाला, पक्का जहा रंग है, वो अजे भी जिंदे हैं। तो इनाम लैन वाले ने कोई होर ही बंदा मार के कहता भी इनाम से मारेगा, 5 लाख रुपया का खा लिया। सच नहीं मनो, वो जिंदा करा फिर आप मैनू भी जाते होंगे, उन्हें माड़ा बड़ी नहीं बाणी बड़ी नहीं। तो मौका बनया, एक मौके पता चल गया, तो सारा केस दफा दफा होया, जेल जो सब कुछ समाप्त हो टेक्निकल अमृतसर शहर उन्होंने काफ़ी अच्छा कारोबार है। मैं एक उदाहरण दी है कि असली बंदे अपना बचा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पता होता, उन्होंने तरीके भी पता होंगे, भले मानस काबू होंगे। रहो विचार कहने लगे भी ये साधु है, ये कोई नुक्स नहीं। गलती मेरी है, मैं कथा मैं लेट हो पाया। बादशाह सरकार का मैंने बचाने वास्ते कोई तरीका सोचा, ये बादशाह ने संसार को सूरज के लिए टंगना, ये टंग दिता तो राजी नामी बोलेगी, ये थोड़ी भी ये शक्ति तो नहीं मिली हुई, मैंने सूरज के टंगा लगा, जे बचा होना बचा लो। तब महात्मा ने कहा कि इन्होंने मैं की बचाना है, श्री अर्जन देव जी आपे बचाओगे। ये भी मैं कथा में सुनी है कि संत माधोदास जी जाके समाधि में लेंगे सन, तो उन्होंने दीन दुनिया की सोची घट होती सी। जब बादशाह के बंदे उन्होंने अमृत वेले पूछण आए कि मुंडे को तुसीं जानते हो, ये चोर है कि साध है, तो महापुरख समाधि च लीन सीगे वाहिगुरू कर रहे। उन्हें वेख्या तो सही, तो पर मस्ती के कह दिता कहते कौन चोर थे कौन साध, सब एको हैं। कन्फर्म ही नहीं किया, उन्हें अपनी बेटी को बोलिया, उन्होंने कन्फर्म नहीं होया, इसलिए उन्हें सूरी के टंगने का हुक्म दे दिता कि भाई माधोदास ने साध संगत जी को
अरदास की भी सच्चे पातशाह तेरी बाणी की कथा इस बच्चे ने सुनी है कि प्रभु की बंदगी में जुड़िया है कि हुण तेन मेरी लाड है इनके जब बादशाह के हुक्म अनुसार लकड़ की सूली के चढ़ लगे तो संत माधव दास ने नेत्र बंद करके एहो जी महाराज के चरणों से अरदास की दिल से कभी ना हो गई जग की अरदास दिलों की अरदास किसी महापुरुष जी वो महाराज व्यर्थ नहीं जान देता खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है मुश्किल तो यही है कि ये मुश्किल से होती है। साध संगत जीओ कई बार साढ़े मन के विच ये होता है कि देखो जी संत ब्रह्म ज्ञानी सी मरिया ने माफ करना संत जरनैल सिंह बारे अपने सोचते हैं ना कि जो सचमुच एडा बड़ा संत सीगा कभी ना कहान क्यों बचाया पर सानू पता कि गुरु गोबिंद सिंह का कीता इस तरह का हुक्म होगा। साडी सोच बड़ी नीवी पद्धर की है पर जी संतां की सोच है शहीदां की सोच है ये बड़ी उच्ची पद्धर की है। असीं मरण तो डरदे हाँ असीं की अरदास करांगे भी हे रब सच्चिया मैनूं सुख शांति नाल बचा लवी महाराज मेरे बच्चे मरण ना उन्होंने एहो जे सिंह सीगे संत मोह सो लगे छोटी छोटिया बच्चियां नाल सिंघणी काम कहते भाई भज जाओ परिवार वाले ना इतने रहो मुड़ के ना जो दसिया नहीं इतने बड़ी मुश्किल पड़ी जी बाबा जी ब्याह भी तुसीं कीता हिंदू तो सिख तुसीं बनाया तो बच्चियां भी तुहाडी नहीं ने रब दियां दित्तियां भज के कित्थे जावांगे मरना तो एक दिन है ही है इत्थे मर गए तो महाराज एक तो चढ़ती कला कर दे इस तरह सोच सी कबीर मोहे मरने का चाव है मरो तो हर का द्वार बड़े राह सीगे अकाल तक सहब ने पिछले पासे छोटी जी गली खानी बड़िया संसा कढ़िया भाई अमरीक सिंह महापुरखों का हुक्म सीगा जिन्हें जाना चले जाओ भाई मोहकम सिंह जी रागी गुरशरण सिंह जी ते बड़े सिंह बिचों निकले हैं पर जोड़े अपनी मर्जी के नाल खुशी लग रहे वो ही उत्थे रहे कोई उन्होंने कोई दिक्कत या परेशानी कोई जबरदस्ती नहीं सी। महापुरुष संत करतार सिंह ने अरदास की भी हे गुरु गोबिंद सिंह तू अपने चारे के चारे बच्चे कौम ने लिखे ला दिते मैनू तू दो दिते ने दो दिन तू एक ही अरदास प्रमाण कर एक ही बच्चा ले ला जेड़ा तेरे 500 कुर्बान हो गए। देखो आप अरदास करते हैं भी बच्चे जिंदे रहन ते जवानियां मानन ते बड़ी उम्र करके फिर चढ़ाई कर बाल बच्चों का सुख लेकर पर संत करतार सिंह ने अरदास की कि मेरा एक बच्चा मेरे लेखे लग जाए तो इस वास्ते सब कुछ हुक्म के है ये बारे आप समझ नहीं सकते। गुरु साहब कृपा करना उन्होंने कुर्बानी मजबूर नहीं जाती कलगीधर महाराज तो देखो कितना खून भुले इस धरती से आपे महाराज में आ गया वो तो वेख रही है रखो विचार कोई भी संत है कोई भी साधु है कोई भी शहीद है वो कभी अरदास नहीं करता कि महाराज मेरा शरीर बचिया रहे मैं बना ना हाँ ये जरूर करता भी सिक्की सिर्फ नहीं जाए सिर जावे तो जाए मेरा सिक्की सिर्फ न जाए तो बुढ़े हो के जरूर हड़ बुढ़े रगड़ने जवानी की महाराज लिखे लग जाए क्यों साथ सकता जी वो बच्चे को कोई भैन नहीं सी लगता जिन निर्भो जिन हर निर्भो ध्याया जी इनका भो सब वासी है राहु को दे देने न कर मान प्रभु नानक सुन ले बना ज्ञानी करके खुद पर ये पाशाह शब्द सरकार बने तभी तभी तो पैर नहीं बढ़िया मरण तो नहीं रहे नामी पाशाह को थे पात्र में हरार घबराई नहीं तो एक बस की लाइन है
जब भाई माधोदास जी ने सतगुरु अर्जन देव जी के चरणों में अरदास की नेत्र बंद करके तो सुखी लकड़ के विचों हरियां लगा निकल के धरती को आ लगियां ते लड़की को कुछ भी नहीं होया वो लकड़ जी नरम लै गई जब ढिड बनने ढिड के घुमाउण लगे वो लकड़ खुली नहीं वो शक्ति खत्म हो गई वो नरम हो गई फिर उन्हें लोहे की सुनी बड़ी वो भी मोहन ढल के धरती को आ लगी ये देख के बादशाह ने महापुरुषों ने चरण पड़े ये माफ़ी मंगी तब माधोदास ने कहा माफ़ी मंगनी है तो संस्था जी को बोलो जिन्हों की कृपा करके लड़का बचे है तब बादशाह ने सतगुਰਾਂ के दर्शन करने ਲਈ संत माधोदास के चरणों के बेनती की तो संत माधोदास बादशाह के लड़के को लैके श्री अमृतसर साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में पहुँचे तो सतगुਰਾਂ ने जो साध संगत जी को रहरस का पाठ उठा रहे थे जोड़े शब्द रहरस के विच हैं भाई गुरदास साहब जी को उपदेश दे रहे थे राग गुजरी महला पंजवा आही देवन चित्र उदम या आग हरके पड़िया सैल मत में जंतु पाए ताकर जी कागा कर तरया के भाई गुरदास जी तुसी उदम करके सत्संग को क्यों प्रेरित करके आख्या कि माया बेटा करो जब वाहिगुरू को साडा फिक्र है तो सानू माया के लिए कोई फिक्र नहीं करना चाहिए जहाँ आखिर हर जीव करिया शायद रत्न में जंतु पाए आकर जी कागा कर करिया देखो खुश्क पत्थरों के विच जीव जंतु परमात्मा ने पैदा किए उन्होंने रिजक भी पहला ही रख रखा पत्थरों के विच जिमें कोई लोहार कोई मिस्त्री किसी का गड्ढा काम करता हुआ मान लो किसी का गड्ढा रिपेयर कर रहा है या कोई होर बड़ा काम कर रहा मेरे वर्गा गया आख्या मिस्त्री जी दाती के दंदे कट दो तो डंगर भुखे नहीं मैं पट्ठे लैन जाना कख लैन जाना जल्दी कर दो उन्होंने पता भी बड़ा काम काफ़ी चिर बाद होगा निके मोटे कामों विचों नहीं करी जाएगा किसी के दंदे कट देते किसी का पप्पा ला देता किसी का हल कर देता वो बेचड़ी उधरों हट के इधर हो जाता है ये श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश भाई गुरदास जी को दे रहे सन बच्चे भाई माधोदास जी आ गए जब उन्हें सारी साखी सुनाई तो महाराज ने उस शब्द के भाई माधोदास ने बताए पंक्तियां चारियां मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद मत पाया सुखी काश हरिया ये दो पंक्तियां भाई माधोदास ने बताया जाके फिर भाई गुरदास जी कहने लगे जन्म पिता लोग सुध बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर जिन संभाले ठाकुर आए ही मन हो गरिया बूढ़े बूढ़े आवे से कोसा इस पाचे बचरी शरिया ते कम खिलावे कम चुगावे मन में सिमरन करिया सागर ने नानंद से असत से नाम ठाकुर कर तन धरिया ज्ञान नानक बल बल सब बल जाइया तेरा अंत न पार भरिया इतना ठहरा के सिंह साहब सचखंड हरिमंदिर साहब को जब रहरस पढ़ते हैं इतने बड़े ठहराव दे के बाणी की तरह समाप्ति हो गई है दोबारा तो फिर पंक्तियाँ पढ़ दी बाणी पढ़ दी जब ये है कि दोबारा तो ठहरा के कितने पंक्ति पढ़ी थी जितने फजे बुलानी हो वो डबल पंक्ति पढ़ दी सब नाम से ठाकुर कर तन धरिया जन नाम बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पार भरिया इंदिरा समाप्त हो गई आप कभी सोचा कि इतने डबल पंक्ति सिंह शब्द क्यों पढ़ते हैं ठहरा क्यों पढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने जो भाई गुरदास साहब जी के पासों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पावन सूत्र लिखवाया वो रहरास इतों तक लिखवाई सी करतारपुर वाली भीड़
रहस्य इत्थों तक है। ये जिहड़े 5 शब्द बनते हैं, जिहड़े इहदे तो अगले 4 शब्द ने राग अस महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हरि अग्नि अपार। ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने दमदमा साहिब वाले पावन समूह के लिखवाए। कहो नानक हम नीच कर्मा तक दमदमा साहिब वाले श्लोक च रहरास है। ये तो अगली रहरास जी आप 24 साहिब द दोहरे पढ़ते हैं। ये भाई मनी सिंह साहब ने 5 ग्रंथी लिखी है। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की आज्ञा लैके लिखी है कि महाराज आप मौका बख्शो जिस मौके असी आपकी दसम बाणी में पढ़ सकिए। सो रहरास पक्के 24 साहिब के दोहरे दर्ज कर देते। ये सिंह साहब बंधन कटवाने वाले ये दमदमी वीर की लिखारी भाई मनी सिंह साहब ने रहरास बनाई है, जो सचखंड हजूर साहब अजे भी इसी तरह पढ़ी जाती है। श्रोमणी कमेटी ने बंद कर देती है, ये उन्होंने अपनी मर्जी है। चंडीगढ़ के सिंह सभा वाले सारे गुरुद्वारे श्रोमणी कमेटी की मगर लैके अखिल अकाल तख्त की मर्यादा है, वो भी अभी रहरास पढ़ते हैं। ऐसे गुरु घर के साडा जी लगन का एको एक यही साध संगत जी कारण है कि इतने पिता पजामी कोई कंपलसरी ने पजामा भी पावे ना ना पाए ओले तुम्हारे की सेवा हो सकती है। तो दूसरा इतने बाणी पूरी पढ़ी जाती है क्योंकि इतने संस्था की संगत है। 5 बाणियाँ भी पूरी अवसर रहरास भी होगी, इस करके दिल लगा ये कारण है मुख आपके दर्शन से ना कोई विचार। सतगुरां दा उपदेश सुन के तो लड़की को ज्ञान हो गया कि संसार के मां प्यो स्त्री पुत्र भरा होर सुनने किसी का कोई सहायक नहीं, तो वो हृदय को बहुत दूर हो गया। साथ संगत जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया, पुरानी ब्रह्म ज्ञानी बना देता। क्यों सतगुरु जी इस पावन शब्द की परमता करदिया रहाऊ वालियां पहलियां पंक्तियां दे विच लिख रहे हैं। कोई जानै कवन इहा जग मीत जानता कि इस जगत दे विच मैनूं प्यार करने वाला असली मित्र जिहड़ा है सब झूठे ने। जिस होए उल्टी रे मन उल्टी रे साकर सिंपल उल्टी रे झूठे की रे झूठ जीत रहा। सो छुटकी रे मन छुटकी रे इस तरह हमारे का बचना है। जिस होए कृपाल सोई बिद बुझै परमेश्वर पूर्व ब्रह्मांड ले लिया कृपा जो ज्यादा होता है कोई इस विधि को समझता है। ताकि निर्मल रीत मात पिता बनता सुख बंधप इष्ट मीत अर भाई जिन्हों के नाल साडा आत्मा मोह लगा होया क्योंकि चाटे आप थकते नहीं है, जिन्हों दी परिक्रमा करते हैं जिन्हें की रात में कोई थकावट नहीं है। पूर्व जन्म के मिले संजोगी वो सारे भैन भरा मां प्यो धियां पुत्र इसलिए ये सारे पूर्वले जन्मां के कीते कर्मां के संयोग करके मिले हैं। कोई लैन देन का संबंध है, किसी के पैसे आप देने ने दे के मुकर गए सी जिते नहीं तो अगले जन्म साढ़े धियां पुत्र बन के आ गए आप तो होता नहीं ना। बीमारियां शुमारियां भी यही कारण बन गए, बहुत पैसा कई बार फिरता धियां पुत्र कई माँ प्यो की सारी उम्र की कमाई कईयों के खड़े भी लोग खड़ा गए हैं। सिखा ना वेख लियो धियां पुत्र शराबा कबाबा नशे की उठा के पुराना कर्जा से लोगों का वो लैन आए लै गए चले गए। आपको समझ नहीं है परमात्मा की खेड बड़ी अलौकिक
ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਕਰਜਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਅੰਤ ਹੈ ਪੂਨਾ ਸਹਾਈ। ਬਾਗ ਮਰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10-10 ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਗੋਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੜੀ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਕੂੜਾ ਡਾੜਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਬਦ ਹੈ, ਤਾਮ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਬ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਧਣੀ ਭੂਮਨ ਚਤੁਰਾਂਗਾ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂਐ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਗਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।